harmful thing is the momos. And these things are not harming your odor, that is you are getting lean and you are not malnutrited. It is affecting badly the your fertility. And you can see how many if you will survey, or we will survey in a college, and I think we should go to a hospital, and you will see lot of not the females only, male members are also there is low in spermia, azoospermia which we call, and infertility is there, that is their ovaries are not producing the healthy ovum and all, and there are some that is known as PCODs, that is polycystic ovarian syndromes, are very common. तो सर हम when we sit outside तो मैं देखती हूँ जंक फूड्स ही खा रहे होते हैं बच्चे. मैं पूछती हूँ कि बेटा आप क्यों खा रहे हो? दे आर सेइंग कि मैम ब्रेकफास्ट, वी आर विदाउट ब्रेकफास्ट, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था. तो ये सब चीज़ें देख के सर बहुत ही दुख होता है. और बच्चों, आप लोगों को ये लग रहा है कि हम इस स्टेज पे खा रहे हैं, सर एक्यूमुलेटिंग इन योर बॉडी. तो when you will reach to about 30 years you will have many diseases, मतलब हो सकती है, दे मे बी, जिस तरह से आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं. और डेली आप देखते हैं, यू मे सी सर 1 or 2 girls or even boys also faint because they are not taking breakfast, and after 12 o'clock or 1 p.m. and everybody, even the science students, are taking the kulcha from outside and they are taking it, and that is very harmful. They also tell me, ma'am please you take. मैं कभी नहीं खाती हूँ. अगर कोई forcefully कोई खा भी लेता है, but it does not suit me. तो बात हो रही थी nutrients की, we should take them in adequate amount, means not more and not less. देते हैं और 50 से 60% हमें एनर्जी देते हैं. और रिमेंबर वन थिंग, only 1% of our body weight is increased because of the consumption of carbohydrate. हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर किसी फूड की होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट की होती है. फैट्स की कम करता है, डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर क्रिएट करना शुरू कर देता है अगर उसकी कंजम्पशन ज्यादा करते हैं. तो आप देख सकते हैं 12 to 15% protein. Remember this thing, we can't use protein as a source of energy. Then we use protein as a source of energy. फैट्स की एग्जॉस्ट हो जाए तब हम प्रोटीन को सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं. जहां तक विटामिन और मिनरल्स हैं, रिमेंबर दिस थिंग कि दे कांट प्रोवाइड अस एनर्जी. विटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए 400 to 500 ग्राम फॉर नॉर्मल अडल्ट हेल्थी पर्सन डूइंग मॉडरेट वर्क. जैसे आप लोग हैं, आप लोग तो मॉडरेट से भी कम काम करते हैं, तो आप तो कम से भी चल जाएगा. लेकिन जो मॉडरेट काम करते हैं 400 to 500 ग्राम्स पर डे फॉर नॉर्मल अडल्ट हेल्थी पर्सन डूइंग मॉडरेट वर्क. टू टेक 70 to 100 ग्राम प्रोटीन पर डे. जैसे कि बच्चा है ना, प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ में, हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट में मदद करती है. तो जो माँ जो होती है, मदर होती है, जिसके जो अभी पार्चुरेशन होने वाली है गेस्टेशन के पीरियड में, उसको प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा नीड होती है, या जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको. जैसे फॉर एग्जांपल 1% पर बॉडी वेट, मतलब 1 किलो का बच्चा 1 ग्राम प्रोटीन. ये today's workshop, the zoology department, the coordinator Dr. Urizia Banjum, the secretary of today's function, the co-secretary Dr. Shamim Bande, Dr. Tabassum Naz, the senior most faculty member Dr. Abbas Saab, Wasim Saab, Wasimul Haq. In fact, I think much has not been left. Much light has been thrown by Dr. Bande and our resource person who has just, Dr. Barzana, who has opining in me, and deficiency. But I would like to quote here one of the stanza that जिंदगी क्या है चंद अनासर का ज़ुहूर तरतीब. जिंदगी क्या है चंद अनासर का ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान. Meaning thereby, if I would like to correlate it with a balanced diet, everything whatsoever we are taking, that should be in certain fixed proportion. Any imbalance leads to its malfunctioning. The diet which we are saying, or upon which we have already been deliberated,
that what we should have to take and what not. And in how much quantity we should have to consume one thing. यहाँ से डाल के दे दिखाओ नहीं आए सैलड की आप मेरी बात अगर आपको क्रेविंग्स भी होती तो आप एक हेल्दी वर्जन उसका ट्राई कर सकते हैं। पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम है इसमें, और ये जो है इनमें विटामिन B6 भी है, विटामिन K है, विटामिन C है। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज इनमें आयरन और पोटेशियम है। ये हमारी जो है ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं बिकॉज ये एक स्लोवर राइज है ब्लड ग्लूकोज ये देते हैं हमें, जिसकी वजह से ये बहुत गुड है, बहुत ही अच्छा फूड माने जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और ये हाई इन फाइबर है तो ऑब्वियसली वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो ये हमें हमारे जो डेली फूड है उनमें कॉर्पोरेट करना चाहिए बिकॉज ये एक बहुत अच्छा प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो जो हमारे पास बहुत कम है। तो आई थिंक ये बहुत हाई न्यूट्रिशनल डाइट है, बैलेंस डाइट है। बहुत अच्छा है। प्लीज हैव आपकी डाइट है ना, डाइट आपकी हेल्दी रहे, बैलेंस रहे, और इम्पोर्टेंट मॉडल और हाँ और बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। चावलों से बना कितना बैड है, आपका बैड है, गुड है, क्या ये कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है, ना ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, नहीं ये बैड वो बुरी है, ये बैड है, ये बैड है। मेरे को नहीं आलू राकेश जी के बाद श्री परविंदर सिंह जी। फूड फेस्ट था, हमारी अभी पहले वर्कशॉप चली, हमने बच्चों को दिखाया कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं फूड की कमी की वजह से या ज़्यादा फूड खाने से, और कौन सा फूड खाना चाहिए। तो आप बच्चों ने प्रैक्टिकली सब खाना खुद तैयार किया। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुद इतना प्रिपेयर अपने आप को कर दे कि किसी भी मुश्किल हालात में वो सर्वाइव कर सके। ये खाना बच्चों ने खुद तैयार किया, अच्छा हैबिट क्या होना चाहिए, और सारे इसके फंक्शन बताए कि ये जो फ्रूट है इसमें प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट्स कितना है। तो मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों में टैलेंट है, इनमें पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को हम लोग एक प्लेटफॉर्म लाते हैं। तो इस वर्कशॉप के जरिए से हमने बच्चों को ये भी बताने की कोशिश की कि देखिए आप खाना भी खाएं और हेल्थी भी रहे, और आपके साथ एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा, सोसाइटी भी अच्छी रहेगी, और आपका अच्छा दिन गुजरेगा, आपकी आगे उम्र भी बहुत अच्छी खुशहाल रहेगी, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप बैलेंस करें। थैंक यू। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे है आपको बताने के लिए बैलेंस डाइट। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन की हैं, जैसे कि हमने पूड़ियाँ लाई हुई है, पूड़ियों का एक हेल्दी वर्जन लाया हुआ है जिसमें हमने मैदे को रिप्लेस किया है आटे के साथ, और जो ऑयल होता है रिफाइंड ऑयल की जगह हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। और यहाँ पे आप चने देख सकते हैं जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, हर एक इंसान जानता है। और चटनी लाई हुई है जिसमें मिंट पड़े हैं, कोरिएंडर्स पड़े हैं, और अजवाइन पड़ी है जो कि आपकी डाइट के लिए एकदम परफेक्ट है। यानी कि हमने आपकी क्रेविंग्स का आपने हर एक चीज़ को इकट्ठा करके एक डाइट बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरियाँ हैं, चिकपीस हैं, चटनियाँ हमने डिफरेंट तरीके की बनाई हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारी बैलेंस डाइट। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जो घर का खाना है उसमें बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट्स वगैरह नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने आज के लेक्चर में यही बताया है कि हमारा घर का खाना जो है वो बिल्कुल एक बैलेंस डाइट हो सकता है अगर हम उसको प्रॉपर्ली अरेंज करें न्यूट्रिशनली। तो ये बस हमने वही डिमॉन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। यूथ को क्या मैसेज देंगे आप? लोगों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हमारी डाइट ही जो है वो हमारी पूरी बॉडी
बनाती है, हमारी पूरी बॉडी में हमें एनर्जी देती है, हमें सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। फैट्स का अलग काम है, कार्बोहाइड्रेट्स का अलग काम है। तो अगर हम ये अपने डाइट में प्रॉपर प्रिकॉशंस में नहीं रखेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो एक तरीके से माल फंक्शन करेगी। तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट जो है वो बैलेंस्ड रखें। मेरा लोगों को यही